ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ठीक है। या एक्स एक्सिस में मैं लेता हूं बेटा du बाई dy एंड वाई एक्सिस में मैं लेता हूं टाउ, और यहां पर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड बोलता हूं जिसका स्लोप या म्यू क्या है बेटा, यहां पर जिसका म्यू क्या है यहां पर कांस्टेंट है, जिसका म्यू क्या है यहां पर कांस्टेंट है। यही स्लोप ही आपका म्यू क्या है, दैट इज योर व्हाट, विस्कोसिटी। जो स्लोप है टाउ डिवाइडेड बाय du by dy, that slope what you will get, that representing the viscosity, and that slope is constant, means viscosity is not changing. Viscosity is not changing with respect to deformation. Viscosity is not changing with respect to deformation. And when tau is equal to 0, so du by dy is also is equal to 0. So that slope line is passing through the, that slope line is passing through the, that slope line passing through the, that slope line is passing through the origin. That slope line is passing through the origin. That should be straight line, and that straight line should be passing through the origin, and that fluid is called as Newtonian fluid. In fluid mechanics, in fluid mechanics, that is basic assumption, all fluids are, and whatever that we are studying or study of Newtonian fluid is called as fluid mechanics. And the study of non-Newtonian, study of non-Newtonian fluid is called as rheology. Study of non-Newtonian fluid is called as rheology. Study of non-Newtonian fluid is called as rheology. Study of non-Newtonian fluid is called as rheology, and study of Newtonian fluid is called as fluid mechanics. And Newtonian fluid is what? जिसका viscosity tau divided by du by dy, जो slope आएगा that will be constant, and that line, slope line will pass through the origin. And examples of the Newtonian fluids are water. Examples of the Newtonian fluid are water, okay, kerosene, petrol, okay, mercury, and air are the example of the Newtonian fluid, are the example of the Newtonian fluid. ये एग्जामिनेशन में रेगुलरली आने वाली चीज है. डीजल इज ऑल्सो, कोई स्टूडेंट पूछने ही वाले होंगे, डीजल इज ऑल्सो न्यूटोनियन फ्लूइड. ओके, यहां पर du बाई dy के साथ में स्लोप में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बेटा. जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो वेरिएबल नहीं है. यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो यहां पर वेरिएबल नहीं है बेटा. I hope so all of you are getting this point. Okay, so यहां पर आपका du by dy के साथ में विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो विस्कोसिटी इज चेंजिंग ओनली
viscosity changing only with respect to temperature, only with respect to temperature in the sense, हाँ एल्कोहल भी ले सकते हैं बेटा, नो इश्यू, ठीक है, यही आ जाएगा। टेम्परेचर इन द सेंस विस्कोसिटी इन लिक्विड्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, मतलब स्लोप कम हो जाएगा, या टेम्परेचर कम करेंगे तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा फॉर द सेम लिक्विड। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ड्यू बाई डी वाई के साथ में डी थीटा बाई डी टी स्ट्रेन रेट, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं है हम लोग यहां पर, टाइम इंडिपेंडेंट, यहां पर हम लोग टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम के साथ मींस डी थीटा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई कोई वेरिएशन डिफॉर्मेशन के साथ में विस्कोसिटी में मुझे देखने को नहीं मिलता है। दैट इज योर व्हाट, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है बेटा, इतना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, एक लिमिटेशन है, ठीक है। यहां से स्कीमेटिक से जो भी लेना है आप शॉर्ट फॉर्म में लीजिए। लीजिए बोर्ड से जो भी चीजें हैं। इसे और इसे छोड़ दीजिएगा, मैं इसे नोट दूंगा। एग्जाम्पल्स लीजिए और डायग्राम लीजिए। हर्षित करवा देंगे भाई आप लोग, ठीक है। यहां पर डी थीटा बाई डी टी के साथ भी प्लॉट बनाता तो यही सेम स्लोप मुझे मिलता। तो dt चेंज हो रहा है, कोई टाइम चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, क्या यहां पर मुझे कोई चेंज मिल रहा है? नहीं, तो इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम डिपेंडेंट है ही कहां। ठीक है राजन। said to be Newtonian fluid, write down few lines. A fluid is said to be Newtonian fluid A fluid is said to be Newtonian fluid if the shear stress is directly proportional fluid is said to be Newtonian fluid if the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. Is directly proportional
fluid is said to be Newtonian fluid if the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. Or rate of angular deformation. Next slide. The plot of shear stress. The plot of shear is said to be Newtonian fluid if the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. Or rate of angular deformation. Next slide. The plot of shear stress. The plot of shear stress against the velocity gradient. The plot of shear stress against the velocity gradient is a straight line. Is a straight line. Is a straight line and passing through the origin. Is a straight line and passing through the origin. ठीक है. Straight line and passing through the origin. For next line, note, for Newtonian fluid, viscosity is a function of, for Newtonian fluid, viscosity is a function of temperature only. Viscosity is a function of temperature only. Okay. एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिए, ठीक है. यहां एक हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, देन सरफेस टेंशन, देन कैपिलरी राइज एंड फॉल, then vapor pressure. That will be your sequence for today's class. Then we'll start the pressure measurement. Okay? तो 10 minutes का short break हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. Okay? Otherwise non Newtonian fluid को cover करते करते time हो जाए और फिर वो break mismanagement side में आ जाएगा. कौन सा first slide की बात कर रहे हैं बेटा? ठीक है? So we'll take the short break from now. Against, yes, the plot of shear stress against the velocity gradient. Tau against shear stress against velocity gradient. Okay? Is a straight line, and passing through the origin. That is your what criteria of the Newtonian fluid. ठीक है. For Newtonian fluid, viscosity is the function of temperature only. Viscosity is the function of, ठीक है कुंदन, सब आराम में ही है. सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. इसके बाद हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की ओर आगे बढ़ते हैं. दैट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मींस व्हाट? इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रियोलॉजी बोलते हैं. RHEOLOGY.
Okay, so let me proceed towards the rheology. Okay, let me proceed towards the rheology. Okay, or non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluids. Write down one line under it. Write down one line under it. Fluid which do not obey. Fluid which do not obey Newton's law of viscosity. Fluid which do not obey Newton's law of viscosity are called as non-Newtonian fluids. Are called as non-Newtonian fluids. The study of non-Newtonian fluid is known as rheology. Is known as rheology. Is known as rheology. Okay. Now यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की जगह पावर लॉ एप्लीकेबल है. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की जगह पावर लॉ एप्लीकेबल है. Where N and A, where N is flow behavior index, where N is flow behavior index, where N is flow behavior index, and A is what? Consistency index, and where B is what? Yield stress. B is what? Yield stress. और फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए whatever initial stress, डिस्कशन होगा इसमें. Initial stress, okay, initial stress और yield stress B is equal. Okay. अभी सुनिएगा सिर्फ, I'll give you the time. Now मैं बोलता हूं if B is equal to 0, if B is equal to 0, so tau is equal to A du by dy to the power n. Okay. All of you are getting me or not? Now let me do one thing. Tau is equal to A du by dy to the power n minus 1 multiplied by du by dy. Now this tau is equal to this whole term. This whole term is called as mu apparent. This whole term is called as mu apparent multiplied by du by dy. Multiply by du by dy. Or what I can call tau is equal to mu apparent. APP से भी denote किया जाता है. That is your what? du by dy plus b. That will be the formula of tau for the non-Newtonian fluid, or what I can say that is your what? Conversion of the power law. Same चीज है. यहां पर अब n जो है वो वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है.
ओके, यहां पर जो n है वो वेरिएबल है और जो b है वो भी वेरिएबल है। पहले जो स्लोप था वो कांस्टेंट था, अब पावर में n आ गया है और n वेरिएबल है तो स्लोप यहां पर कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, 4 to 5 or 6 टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड that we are going to discuss in the 4 to 5 next 10 minutes. Okay, so let you take this basics of the non-Newtonian fluid first, each and everything that you should take. Okay, हनी का ऐसा है प्रिंस, होने को तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड ही है, बट जब उसमें सुक्रोज कंटेंट बढ़ाया जाता है ना, तब वो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज भी शो करने लगता है। ठीक है, आप इसे न्यूटोनियन फ्लूइड में कंसीडर कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन लेवल तक। ठीक है विशाल, बता देता हूं। मुझे क्या चाहिए, एक विस्कोसिटी का टर्म बनाना है। ये तो बेटा du by d, अरे आप सिंपल देखो ना, ये यदि इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो n minus 1 plus 1, so n कैंसिल हो जाएगा, अगेन दिस विल दैट यू विल गेट दिस टर्म। सो मुझे विस्कोसिटी का एक टर्म चाहिए था, यही वो विस्कोसिटी का टर्म है n minus 1 जो आप देख रहे हैं। du by dy अलग कर दिया, तो दैट व्हाट आई एम कॉलिंग इट एज कंप्लीटली म्यू एपरेंट, जो विस्कोसिटी एट द इंस्टेंट अपीयर हो रही, यहां पर जो विस्कोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी होते हुए du by dy के साथ में वेरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अपरेंट, अभी कुछ अपीयर हो रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और अपीयर होगा, किसी और डिस्टेंस पर कुछ और अपीयर होगा, तो विस्कोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। दैट्स व्हाट वी आर कंसीडरिंग म्यू अपरेंट। अपीयर कितना होता है, B कैसे आ गया, B को तो 0 माना है। ठीक है, B जो है, अरे बेटा बात यहां इस कंक्लूजन तक आने तक के लिए B is equal to 0 किया है। ठीक है, that is also that may be possible B is not equal to 0. ठीक है, so that is your what power law, don't worry. कहां है बेटा dt, that is why dy। ठीक है, dilatant fluid, in this case n is greater than 1 and B is equal to 0. In this case n is equal to 1 and B is equal to 0. देखो विशाल, du by dy के साथ क्या म्यू चेंज हो रहा था? मैं विस्कोसिटी के इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा हूं, समझ में आया? यहां पर du by dy के साथ विस्कोसिटी चेंज होगा, जो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां पर n is greater than 1 and B is equal to 0 and what we are having n minus 1 term. Okay, now tau and that is your what du by dy and that is your what n minus 1 term is here. Mu apparent
is equal to what? A du by dy to the power n minus 1. B is equal to 0 means इनिशियल स्ट्रेस कहां से पास हो रहा है बेटा? ओरिजिन से आपकी लाइन पास हो रही है और n इज ग्रेटर देन 1 मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है. जैसे जैसे मैं फ्लूइड को डिफॉर्म करते जा रहा हूं, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ते जा रहा है, फ्लूइड क्या होते जा रहा है? थिक होते जा रहा है. जो विस्कोसिटी है वो क्या होते जा रही है बेटा? इंक्रीज होते जा रही है. जो विस्कोसिटी है वो क्या होते जा रही है? इंक्रीज होते जा रही है. मतलब फ्लूइड क्या होते जा रहा है? थिक होते जा रहा है. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ फ्लूइड, डायलेटेड फ्लूइड, is also called as shear thickening, also called as shear thickening fluid. Shear thickening fluid, also called as shear thickening fluid, also called as shear thickening fluid, also called as shear thickening fluid. ठीक है. एग्जाम्पल जो चाशनी है, शुगर in H2O. Okay, that is what we called as syrup. जो चाशनी है, that is your example of the shear thickening fluid. Rice starch. Rice starch. In Hindi, that we are calling it as mark. जो कपड़ों में कलप करने के लिए इसको एक क्या बोला जाए, कड़क करने के लिए यूज किया जाता है कॉटन को या लाइनिन को. दैट इज योर व्हाट? राइस स्टार्च. ओके. और बटर. नेक्स्ट इज योर व्हाट? बटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द shear थिकनिंग. आप बटर का एक क्यूब लीजिए और उसमें नाइफ को मूव करते जाइए. आगे मूव करते करते वो जो बटर की थिकनेस है, जो लेयर की, वो इंक्रीज होगी और वो ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देगी कट करने की. दैट इज योर व्हाट? उसकी विस्कोसिटी अपीयरेंस में क्या हो रही है? अपैरेंटली इंक्रीज हो रही है. दैट विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग. गेटिंग मी और नॉट? दैट आर द एग्जांपल्स. ये आपके एग्जामिनेशंस में आ सकती है. कोई और डाउट हो तो पूछिएगा. नदीम, फिर आपने पिछला कुछ छोड़ दिया. इतना लीजिए, फिर एक लाइन में दूंगा. एग्जांपल्स लीजिए. अभी मैंने shear थिकनिंग बस समझाने के लिए लिखा है, यहां एक लाइन में आप लोगों को दूंगा. बाकी आप सब नोट कर लीजिए इसको छोड़ के. ठीक है. Write down one line. For dilatant fluid,
apparent viscosity, नहीं है बेटा प्रिंटर सिंह, प्रिंस थोड़ा वेट करिए, थेक्सोट्रोपिक में आएगा. For dilatant fluid, the apparent viscosity increases with the rate of deformation and called as shear thickening fluids. Called as shear thickening fluids. Okay. Example: sugar in H2O, rice starch, butter. One more example, when a student is saying called as shear thickening fluids. Okay. Example: sugar in H2O, rice starch, butter. One more example, when a student is saying that you also write down quicksand. Quicksand. याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है. B इज इक्वल टू 0 मतलब बेटा ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है. नाउ वन मोर case 2 I am considering here. Case 2 I am considering here pseudoplastic fluid, where n is less than 1 and B is equal to 0. Where n is less than 1 and B is equal to 0. Tau du by dy, and that is your what? Mu apparent. B is equal to 0 means what? It is passing through the origin. It is passing through the origin and slope is what? N is less than 1. तो slope क्या होगा? आपका decreasing होगा. मीन्स जो म्यू एपरेंट है, विस्कोसिटी क्या होते जा रही है? ड्यू बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी के साथ में कम होते जा रही है. विस्कोसिटी डी थीटा बाई डी टी के साथ में कम होते जा रही है. विस्कोसिटी कम होते जा रही है मतलब फ्लो क्या होते जाएगा बेटा? इजियर होते जाएगा. फ्लो इजियर होते जा रहा है. So that type of fluid is called as shear thinning fluids. This type of fluids are called as, जिसमें flow easier होते जा रहा है, that type of fluids are called as shear thinning fluids. Examples हैं इसके, blood सबसे best example है. Blood, milk, gelatin and paper pulp. फ्लो होते होते म्यू डिक्रीज होते जा रहा है. फ्लो होते होते म्यू डिक्रीज होते जा रहा है. क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? ब्लड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. योर हार्ट इज वॉट? रेसिप्रोकेटिंग पंप. गेटिंग मी और नॉट? जो वॉल्स है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का काम कर रही. किसकी वॉल्स? वॉल्स, नॉट वॉल्स, वॉल्स, दीवार, हार्ट की. तो ये हार्ट जो है दैट इज योर वॉट? रेसिप्रोकेटिंग पंप. ये ब्लड को आखिरी कॉर्नर्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू
एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हाँ या ना? यदि ये ब्लड शेयर थिकनिंग होता तो हार्ट का फेलियर हो गया होता। हार्ट पंप करता और फ्लूइड मतलब ब्लड आगे बढ़ता और थिक होते जाता तो हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ता। समझ में आ रही है बेटा ये चीज? अब यहां पर जो ब्लड है वो शेयर थिनिंग फ्लूइड है, तो यहां से हार्ट ने पंप किया और जैसे जैसे फ्लो आगे होते जा रहा है, इसका फ्लो बिहेवियर ऐसा है कि ये स्लोप जो है वो कम, मतलब म्यू एपरेंट विस्कोसिटी क्या होते जा रही है बेटा? कम होते जा रही है। तो फ्लो क्या होते जाएगा? फ्लो होने के आगे बढ़ने के साथ साथ इजियर होते जाएगा, तो आखिरी कॉर्नर तक आपका ब्लड वेन्स के थ्रू इजीली, नस के थ्रू इजीली आपका क्या होगा? ब्लड फ्लो होते चले जाएगा। ब्लड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल निकल करके आता है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। अदर एग्जांपल्स जिलेटिन, मिल्क है, पेपर पल्प इन द सेंस जो प्रिंटिंग प्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर पेपर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वहां बांस की लकड़ी की कटाई करके पेपर पल्प बनाया जाता है, उसको रोल किया जाता है रोलर्स के बीच में। तो जब रोल कर रहे हैं तो वो इजीली फ्लो होते चले जाता है, विस्कोसिटी कम होते जाती है जैसे उसकी थिकनेस कम होते जाती है। सो ये पेपर पल्प भी आपका क्या है? शेयर थिनिंग फ्लूइड में ही, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में ही आता है। ठीक है, इतना नोट करेंगे, ये आप नहीं लिखेंगे, यहां एक लाइन में लिखवाऊं। Here it was constant, now it is changing. Earlier it was constant, now it is changing with respect to dt. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, अब इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुझे एक रास्ते में ले जाना है, रुकना नहीं है बार बार। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग, ये लाइन नहा लीजिए। आपका ये जो आप एग्जाम्पल अर्ली स्टेज में ले रहे हैं, या तो आप वर्कबुक या जो भी आपके पास में मटेरियल है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट हैव पेशेंस। टूथपेस्ट या जो क्ले है, इसको मुझे फ्लो कराने के लिए कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ता। न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में मैं बोल सकता हूं कि हायर शियर फोर्स स्मॉल में भी, बट कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे निकल करके आते हैं कि जिसमें मुझे इनिशियल स्ट्रेस उसको फ्लो कराने के लिए, टूथपेस्ट में आप टूथपेस्ट फ्लो होकर के बाहर आता है, बट उसमें कुछ मुझे इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ता है। दैट इज योर व्हाट, यहां पर ये सॉरी यहां पर क्या होगा? दैट इज योर व्हाट बी आएगा, आगे केस आएगा, थोड़ा वेट करिए। यही आपका इनिशियल स्ट्रेस रिक्वायर्ड है टूथपेस्ट को फ्लो करने के लिए, उसके बाद जाकर के कोई फ्लो का काम चालू होगा, तब डी बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी को हम लोग चेक करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई चीजें बेटा? ठीक है, जरा इतना नोट करिएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है चंदन, समझ सकता हूं, इसलिए डिप्लोमा वाले हैं स्टूडेंट, मेरी एक लिमिट है, नहीं तो डेप्थ 10 गुना में ला दूं मैं यहां पर आपको। नहीं अरशद, लिपस्टिक यहां नहीं आएगा, वो थिक्सोट्रोपिक में आएगा, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। आने दीजिए ना टाइम, सब एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ना हो पाए जब टॉपिक कवर हो रहा है और बोला कि हाँ टॉपिक हो गया, और ना हो तब बोलिए, ठीक है? कोई इशू नहीं, स्टूडेंट शुड बी इंटरेक्टिव, नो इशू इज देयर, बट इतना नहीं कि स्लो हो जाएगा। टाइम फ्रेम भी ऑनलाइन for pseudoplastic fluids. Yes, Kathit, good morning. For pseudoplastic fluids, mu apparent decreases with liquid की बात हो रही है, viscosity decreases with
the rate of deformation these fluids are also known as shear thinning fluids. These fluids are also known as shear thinning fluids. Next, case 3. Bingham plastic. Case 3. Bingham plastic fluid. थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इस आप बढ़ाइए, मैं नहीं, लिखने में ही बढ़ा लीजिए, ठीक है. Bingham plastic fluid where n is equal to 1 and b is not equal to 0. Okay. Now let me take the plot of tau versus du by dy. B is not equal to 0 and let me say this is the value of the B, and now that is your what, n is equal to 1, so slope will be constant, but कुछ initial stress required है फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए. कुछ इनिशियल स्ट्रेस रिक्वायर्ड है फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए. उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन नहीं है. दैट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन बट दैट इज योर व्हाट, स्ट्रेट लाइन. y is equal to mx plus c and y is what, intercept. That is your nothing but t, and that mu apparent slope is what, constant. That slope is what, constant. That slope is what, constant. And b is what here beta, yield stress फ्लो कराने के लिए रिक्वायर्ड है. इनिशियली इतना लगाना पड़ेगा, yield stress और इनिशियल स्ट्रेस. समझ में आई इतनी चीज? एग्जाम्पल क्या देंगे आप लोग इसके, अभी मैंने डिस्कस किया है. टूथपेस्ट, द बेस्ट एग्जाम्पल. क्ले, जो भी प्रिंस आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, क्ले जो बच्चे लोग भी खेलते हैं आज की डेट में, कलरफुल, तो उसको हमें मूव करना पड़ता है ना. कुछ आर्टिकल्स हम लोग बना रहे हैं, या और एग्जांपल में बोलो सीवेज sludge, sewage sludge, that is also Bingham plastic, not Singham plastic. ठीक है बेटा. राजन जरा इतना नोट करिए, आप हमेशा एक डिमांड में रहते हैं, प्रीवियस वन सर रिपीट अगेन, थोड़ा स्पीड अप करिए. सचेत अवस्था में क्लास में रहे. अब इसमें इतना ही नोट करना है, नो थिनिंग नो थिकनिंग, ठीक है. कांस्टेंट जा रहा है, बट इनिशियल यील्ड स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. नोट करिए एग्जांपल्स और स्कीमेटिक डायग्राम प्लॉट व्हाटएवर. हाँ, yes. Intercept, that will be what, tau, that will be your what, mu. Okay, and c is what, initial stress. ठीक है. x is what du by dy. ठीक है. c is what, intercept, and
at y axis. ठीक है अभिषेक, गुड 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 गुड. Done. ठीक है बेटा, गुड शिवाश. नाउ next type of fluid is what? Case 4. Thixotropic fluid. Thixotropic fluid, where n is equal to, where n is less than 0, sorry, n is less than 1 and b is equal to 0. Or n is less than 1 and b is not equal to 0. ठीक है? That is your what? Tau. Now du by dy, intercept b is not equal to 0. Now n is less than 1, so slope will decrease. Mu apparent will decrease. Okay, and that is your what? That is your what? That is your what? Initial stress. ठीक है? Printer's ink. यहां पर एग्जाम्पल निकल करके आता है प्रिंटर्स इंक या लिपस्टिक, एनामल्स, पेंट्स. प्रिंटर्स इंक जो पहले ऑफसेट प्रिंटिंग में रोलिंग प्रेस हुआ करता था, रोलर्स चलते थे कलर के और उसके थ्रू प्रिंटिंग होती थी, वहां पर जो इंक यूज होती थी बेटा, उसकी मैं बात कर रहा हूं. वो थिन होते जाती थी जैसे जैसे मूव होते जा रहा है. ओके, या और एग्जांपल में देखता हूं लिपस्टिक, यदि वो थिकनिंग होते जाता तो आप ताकत लगाते जाते, इजीली मूवमेंट. भैया ये आपका काम, मेरा नहीं है. नहीं तो मुस्कुराहट तो आई गई होगी आप लोगों के चेहरे पर. ठीक है, मैं भी मुस्कुरा लूं आपको देख करके, बट ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, सो वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट? इनेमल्स, नेल पेंट्स या पेंट्स की भी मैं बात कर सकता हूं, जो हम लोग पेंट्स टेबल पर, डोर पर यूज कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो व्हाट? थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड. कुछ इनिशियल स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो इजीली मूव होते चले जाता है. टूथपेस्ट में कांस्टेंट स्ट्रेस लगा करके रखना पड़ता है. यहां पर स्ट्रेस मूवमेंट के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा. ओके, आइसक्रीम इज ऑल्सो, आइसक्रीम इज ऑल्सो थिक्सोट्रोपिक. तभी तो स्वाद अच्छा आता है, फैलते चले जाता है इजीली आइसक्रीम जैसे ही टंग में जाता है. ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम रिहोपेक्टिक फ्लूइड की ओर आगे बढ़ेंगे. As a teacher, always looking. In
for the eye contacts and energy interaction from the students. But in this online board, we rarely get energy from the students. जो ऊर्जा का वितरण है, संवहन है, वो रुक जाता है. ठीक है, ये ऑनलाइन rheopectic fluid. Yes. Case 5. Rheopectic fluids. N is greater than 1 and B is not equal to 0. Rheopectic fluid. Now tau and du by dy and B is not equal to 0 but N is greater than 1. So mu apparent will increase. Mu apparent will increase with du by dy. Gypsum paste. Example, gypsum paste. Best example, gypsum paste. Rheopectic fluids. That is your what? Thickening. Earlier thick से thin नहीं बेटा, जो है उससे thin होते जा रहा है, thick नहीं था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं. यहां भी thin से thick नहीं हो रहा है. इसमें enamel means what? Paint. Okay? यहां भी आपका किसी एक वैल्यू से थिकनिंग हो रही, थिन से थिक नहीं हो रहा. अर्लियर थिक से थिन नहीं हो रहा, थिनिंग हो रही है बट थिक से नहीं. यहां थिकनिंग हो रही है बट थिन से नहीं. ठीक है, आगे बढ़े. नोट किया. नाउ वन मोर थिंग, आइडियल फ्लूइड. केस 6. Ideal fluid means viscosity is what? 0. Means slope is what? 0. That is your what? Tau. That is your what? Du by dy. And that x-axis is representing ideal fluid. That x-axis is representing ideal fluid with zero viscosity. With zero viscosity. Okay. Now यहां पर y-axis में जाता हूं, so that is your what? Ideal solid. कितना भी shear stress लगा रहा हूं, कोई भी deformation नहीं हो रहा. Ideal solid. shear stress के बिना ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, फ्लूइड फ्लो पॉसिबिलिटी बन गई विदाउट shear stress. आइडियल फ्लूइड. समझ में आए? x axis representing ideal fluid, y axis representing ideal solid. Now one horizontal line is what?
इतने के बाद कांस्टेंट हमें shear स्ट्रेस के साथ फ्लो होते हुए मिल रहा है, दैट इज योर व्हाट आइडियल प्लास्टिक। जिन्होंने भी मुझसे प्रोडक्शन पढ़ा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के समय में मैंने इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल बताया है, दैट इज योर व्हाट आइडियल सॉलिड की बात कर रहा हूं, आइडियल इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, और सिग्मा एन एंड ई, ये बेटर रहेगा यहां बोलना टाउ डी बाई डी वाई से। यहां तक इलास्टिक यील्डिंग हुआ और जेंटल लाइन, दैट इज योर व्हाट आइडियल प्लास्टिक, आइडियल इलास्टिक एंड प्लास्टिक। कोई इलास्टिक मूवमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज योर व्हाट आइडियल प्लास्टिक। लेट यू टेक दिस थिंग्स and that is our what hypothetical मनगढ़ंत। होता नहीं है बेटा, ये ऐसा कहा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्शन में नहीं है और फ्लूइड है तो मैटर के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाएगा। तो ये एक मनगढ़ंत फ्लूइड है, हाइपोथेटिकल, इतना जरूर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस बनाए आप लोगों ने प्रोडक्शन के, we have taken from the reference of that plot that we are considering, that one hypothetical that we have defined, but it is not in the existence, ठीक है। Let me do one thing here, whatever fluids, Newtonian or non-Newtonian, whatever, let me draw in one plot. Newtonian and non-Newtonian, whatever it is, let me draw in one plot. Okay? Now, that fluid is what? Newtonian fluid. That fluid is what? Newtonian fluid. Yes or no? That fluid is what? Newtonian fluid. Okay. Now, next fluid is your what? Dilatant fluid. Next fluid is your what? Dilatant fluid. In case of dilatant fluid is N is greater than 1 and B is equal to 0. Next fluid is what beta? Passing through the origin only. That is your what? Or from here that we can take pseudoplastic. Pseudoplastic fluid. N is less than 1 and B is equal to 0. Blood, milk, gelatin, paper pulp are the example. Dilatant, rice, starch. Yes or no? Examples भी, ठीक है। Now इसके बाद में मैं आता हूं, next is your what? Bingham plastic fluid. Here B is not equal to 0. That is your what? B is what? Initial stress required and N is equal to 0 but B is not equal to 0. Sorry, N is equal to 1.
इससे मैं और आगे बढ़ता हूं तो थिक्सोट्रॉपिक एंड rheopectic. That is your what? Rheopectic? Yes or no? Rheopectic. Where n is greater than 1 and b is not equal to 0. One more thing. That is your what? N is less than 1 but b is not equal to 0. That is your what? Thixotropic fluid. Printer ink, ice cream are the example. Now, that is your what? Ideal fluid. And that is your what? Ideal solid. Ideal solid. इतना एक स्कीमेटिक में याद रखिए और आपका काम यह है इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी इस स्कीमेटिक में लिखिए तो बेटर रहेगा।